Hosting is the space on internet, like अच्छा, you हमें just स्पेस लेनी है, ठीक है। where you just save all your stuff, your images, content, text, codes, everything. ठीक है, कुछ गीगाबाइट्स या कुछ एमबी कुछ बाय करने हैं, बेसिकली Exactly. जीबी में होंगी ना समथिंग। Yes, हाँ yes, yes. It has some limit. Like जैसे हमने एक विश्वा का प्लॉट खरीद लिया, the same thing, हाँ जी, है ना? ठीक The है, same गॉट इट, thing. दैट्स गुड। हाँ, that's the same thing कि हमने 1 GB की स्पेस खरीद लिया on the internet. तो स्पेस भैया ले लिया हमने, हाँ। हाँ. So that is for in 1 year basis we buy this place, and every year we Oh, just update the domain and the hosting. ओके, दैट्स गुड, ठीक है सर, थैंक Okay. यू। Welcome. Then here we are. So we have completed these steps. Now comes to the marketing portion where we are experted. So we are not gonna choose these conventional options to market our shop. We are digital experts. So what we will do the 6th step and do the digital marketing, right? So that will be the next coming portions जो हम लोग करेंगे. But right now, tomorrow and in this coming week we are going to work upon these things, these 5 elements. All right, so what we are going to do first, we are going to buy the domain, then hosting, interlinking that so that our site can get live. Once it's live, you are going to develop your WordPress website out of that, and once you have developed your website, you will be changing the content inside that website because it's very easy. WordPress has some good options for you. Okay, so this is something like here. Just give me 1 minute. I'm gonna uh, create one more slide and I'm gonna explain you what it is. Right. Okay. So how you buy that domain? So मैंने आपको बताया shop का नाम मतलब domain name होता है. So how gonna buy that? So we have so many sellers of domain. Okay. Including the name of some, like you say GoDaddy, BigRock, Namecheap, and there's so many people who resell the domain. ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं. नाउ व्हाट यू आर गोना लुकिंग जब आप डोमेन को बाय कर रहे हैं, ठीक है? थिंग्स टू नोटिस व्हाइल यू आर बाइंग योर डोमेन. ओके, हियर इज द थिंग. डोमेन में एक चीज होती है दोस्तों, एक्सटेंशन. ओके, डोमेन में एक चीज होती है आपका नेम, और डोमेन में एक चीज होती है आपका कीवर्ड. ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्या होता है इसमें कि हमने क्या चूज किया, हमने चूज किया, देखो जब आप प्रोफेशनल लॉन्च कर रहे हैं ना, जब आपकी कोई कंपनी है, इट मस्ट टेल यू लाइक या दिस कंपनी इज अबाउट व्हाट. ठीक, जैसे मैं बताता हूँ, अभी दिनेश ने चूज किया था इन्फोटेक, A1 इन्फोटेक, राइट? इन्फोटेक इज द कीवर्ड, राइट? इट टेल्स यू दिस फर्म इज रिलेटेड टू IT वर्क. सेम शुभम ने चूज किया था ब्लफिश मार्केटिंग. इट टेल्स यू द कीवर्ड इज मार्केटिंग. It tells you that this company, this firm is related with this particular marketing era, right? Same as once we're talking about the personal name, it becomes the brand identity of yours. Suppose Prashant Chauhan, okay, yeah, Sandeep, yeah, Divya, yeah, anyone who is using their name, right? Like Deep Maraji. So what is that? The name itself has the brand identity. Yani what you are gonna do, you have to work little bit harder, because people cannot recognize you by your name only, that this person is doing what. Okay, so usually what you need to do, you need to attach these two things, your name with the keyword, while you buying your domain. Why I'm telling you right now, not this before, because that has the process. Abhi aap learning period mein ho. 3 months is your learning time when you are gonna commit so many mistakes. Okay, and this is among the one. I'm gonna tell you the first thing here. While you are going to buy a domain, do not forget to incorporate these two things. Okay, the keyword must be there and the brand name must be there, right? जैसे for example, एक बच्चे ने बनाया, उसने नाम लिया ऑरेंज स्पार्क्स, ऑरेंज स्पार्क्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग, yeah, Orange Sparks Digital. It tells you exactly what it is, right? That's how you create. Yeah,
digital, suppose Deepak. Okay, that's what it is. You gotta complete all this stuff. So you have keyword, you have name with you, which explains your things, and this has a factor in SEO. So when we are talking about SEO, search engine optimization, matlab optimizing your domain is also the part of SEO. Where what you wanna do, this gives you extra advantage of your name. Like Google might be searching about like who has digital. Okay, this site has digital. Okay, put him in the top because this is resonating with the content. All right, like digital marketing services, digital Deepak. So this is what resonating a lot. So that's what you're gonna understand. First thing is here. Second thing is here, extension, right? Suppose मैं बात करता हूँ extensions की. Extensions क्या होते हैं? आपने ध्यान दिया होगा. देखो पहले यहाँ पर देख लेते हैं. .com, .in, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में .au, .us, ठीक है, और .xyz, देन आपका आता है .org, .co.in, ठीक है. These are some few famous extensions, right? अब ये कैसे यूज करना है, इनका क्या यूटिलाइजेशन होता है, जरा एक बार वो समझ लेते हैं. देखो .com क्या है? That is called commercial. कमर्शियल क्या होता है? यानी कि ये वर्ल्ड वाइड आपका फेमस एक्सटेंशन है, वर्ल्ड वाइड फेमस एक्सटेंशन. ओके, सो यू जस्ट गिव मी अ सेकंड. So here I was, yeah. तो आप कहाँ पे यूज करते हैं? Commercial. Commercial means it's just like if you see Google.com, Flipkart.com. This is very actually easy domain name to understand, the extension to understand. People remind this very easily. Like you don't need to put so much effort on memorizing.com. Like for example, saying prashantchauhan.com, it has more sensibility rather than prashantchauhan.in, right? If I'm completely targeting the Indian market and I do not find my .com extension, then I will go with the .in extension. Then I'll go with the .in extension. But the first priority always should be .com. Okay. But in case you don't find .com, because it's very rare to find such name, this combination which actually is available right now in .com. So people are shifting to other domains. Like right now, .xyz is in trend, and that's why like people are using so much. And .in, if you don't find something and you're targeting Indian continent something, so you just can go to .in. If you're targeting the US customers or Australian customer, you can go with these names. So every single thing has an added advantage with them. So you can see that in things like आपका कोई organization है, कोई company है, you can .org, .co.in. In the case if you are not founding this .com and .in both, right? So then you can go with .co.in. But this should be your always the third last option. This can be your second option, and this must be your first option. So we already did that thing. We have decided a name on the behalf of like it is available or not. So we already created our logo on the same basis that we have found yes, this name is available. That's what we are working on that. And where did we found that? On name checker, right? So you can use name checker to find out is that name available all over the place or not. If it is available, it's well and good. Okay, so we have these things ready. Now we are name check में हमारे पास तैयार है, हमारा .com domain भी तैयार है. Now let's talk about the costing factors. How much this cost and for how long you need to pay for this. देखो डोमेन का क्या होता है, you gotta renew it every single year, or you have option to buy this for 2 years, 3 years, 5 years, or 10 years. That's the option that you have. Initially, when you're buying a domain name, it can give you some sort of offer. Okay, so many companies give you some sort of offers. The coupons are available, so you can always check that upon. Like in GoDaddy, if you buy your first domain, you can get it for 500 rupees. But the next time when you will update, it will cost you around 980 to 1100, something this much.
Okay, it costs you this much for .com domains I'm talking about. Same in Big Rock, you will get it in I think 400 to 500 rupees again, and next year the same pricing. हर एक का next year will be the same pricing, but the first year you can get the coupon, right? You gotta find out the coupon cost, okay? So go on Google, search about Google GoDaddy offers, Big Rock offers, and you'll find out one way to just buy this one with offer. Okay, that's about the domain here. Okay, so once you buy this thing, what are the things that you should remember while you're buying the GoDaddy domain? Okay, so we are going to buy this from GoDaddy first of all, and few things from my side जो आपको ध्यान रखनी है, few tricks from my side. Okay, create a particular new user ID, a dedicated Gmail ID, डेडिकेटेड जीमेल आईडी. मान लो मैं अगर प्रशांत चौहान हूँ, तो अगर मुझे अपना prashantchauhan.com करना है तो मुझे लिखना होगा prashantchauhan@gmail.com. नहीं मिल रहा, कुछ और उसमें आप एक्स्ट्रा एडिट कर सकते हो, लाइक कनेक्ट विद प्रशांत चौहान. जैसे मेरी जो आईडी है वो connect.prashantchauhan@gmail.com. इट मस्ट टेल यू द पर्पस ऑफ दैट ईमेल आईडी. ओके, इस आईडी को हम सारे प्लेटफॉर्म में यूज करने वाले हैं, ठीक है? सो ईमेल आईडी विद योर नेम, डोमेन नेम इंक्लूडेड. डू नॉट यूज 1, 2, 3 or something. No digits must be there. Okay, only characters must be there. Okay, no devil, no something, kuch nahi, just only business professional characters must be there. Like, okay, like connect with Prashant, like for my ID it could be connect with Prashant. ठीक है, this is how I can just create a ID. थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा but अनप्रोफेशनल बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? तो जब अपनी आईडी बनाओ ना, मेक श्योर करो इट हैज समथिंग गुड इन इट. ओके, आई विल रिजेक्ट इट इंस्टेंटली अगर आपने बना भी ली ईमेल आईडी और इसमें कहीं मुझको अगर आपका एक डिजिट मिल गया या फिर आपकी अनप्रोफेशनल लगी मुझको, so I'll just reject that और आपको entirely फिर से नई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, नया डोमेन बाय करना पड़ेगा. एवरीथिंग यू गॉट टू डू दैट. सो मेक श्योर यू क्रिएट अ प्रॉपर ईमेल आईडी. फर्स्ट स्टेप. Second step, password. सर अगर वो ईमेल आईडी अवेलेबल ही ना हो फिर? मैंने बोला ना, तो आप कनेक्ट जोड़ लो, वर्क जोड़ लो, कुछ ऐसा जोड़ो जो प्रोफेशनल शोकेस करे. मोस्टली क्या होता है जब आप नाम डोमेन नेम लेने जा रहे होते हो ना, अगर आपका नेम यूनिक है ना तो आपको वो आईडी मिल जाती है, जीमेल आईडी. फिर आता है पासवर्ड सेक्शन. पासवर्ड में क्या चीजें ध्यान देनी है आपको? हर एक जगह आपको एक creating an account on Gmail. हाँ जी. Why we creating an account on Gmail? Okay, so why we are creating an account on Gmail? There's a reason, because in Google, actually most of the tools that you're going to use are of Google. Okay, and like for search engine, you'll be working upon Google because it has सबसे ज़्यादा searches, like 97%, and you'll be using the analytics there. You need to Google account because that's how you just track like how many people from Google are coming to your website. If you're going to run ads on Google, then you again need a website account where you're gonna run ads from, because you're gonna show your ads on Google, right? And if you want to earn from Google, then you'll create a Google AdSense account where you can earn and all the money can come to your account through that email ID. Okay, so Google is the prime platform because it's a main search engine. That's why we're going to create that email ID in Gmail, because that's required in every single platform. That's what I'm going to tell you next. So the next part is password. Guys, every platform requires a very strong password. Okay, so you're going to create a password which has alphabet like small and lower and uppercase. ठीक है, lower and uppercase alphabets होने चाहिए आपके, उसमें आपके digits होने चाहिए, at least 1 digit हो. स्पेशल कैरेक्टर्स हो. स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं आपके, लाइक हैशटैग, @ ओके, एक्सक्लेमेशन, कुछ भी ऐसा, कुछ भी एक चीज, ठीक है? और एटलीस्ट मिनिमम एक कैरेक्टर्स का होना चाहिए. इन 4 चीजों को मिला करके आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है. ये पासवर्ड आपका यूनिक रहेगा, या हर जगह आपको यही पासवर्ड यूज करना है. फिर चाहे वो आपका जीमेल का क्रिएशन हो, फिर चाहे वो आपका GoDaddy क्रिएशन हो, होस्टिंग का क्रिएशन हो, फिर आपका गूगल अकाउंट हो, हर जगह यू गोना यूज द सेम पासवर्ड.
I know in my 6 years I have seen people doing so many mistakes because they create different passwords for different platforms. They will create different IDs for different platforms, and they got stuck. They forget like what was there, I don't remember and everything. So I don't want that kind of mess for anyone. Okay, so at start I'm just explaining these things because these are very important. Okay, third step, this Gmail ID will be used where creating your यानी कि signing up options. जहां भी आप साइन अप करना है आपको, वहां पर आप इस ईमेल आईडी को यूज करोगे. गूगल सर्च, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, यहां पर हो गया. गूगल एड्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएशन. आप कहोगे हमारी तो ऑलरेडी बनी सोशल मीडिया में, यस वहां बनी रहेगी, लेकिन कहीं आपको बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी. वहां पर आप ये वाली आईडी शेयर करोगे. ठीक है, सो दिस इज वेयर वी आर गोना यूज द सेम जीमेल आईडी विद द पासवर्ड सेम. साइन अप हर जगह साइन अप इसी से करोगे आप. फोर्थ सेक्शन, इट्स मैंडेटरी, क्रिएट अ गूगल शीट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास गूगल शीट नहीं है तो ये सारी डिटेल्स आपकी कभी ना कभी मिस हो जाएगी. आप भूल जाओगे आपने डोमेन कहाँ से बाय किया, कब बाय किया, कब रिन्यू करना है. अगर आप उसको रिन्यू करना भूल गए तो वो आपका ब्लॉक हो जाएगा. ओके, फिर यू विल नॉट बी एबल टू रीगेन दैट. आपको 3 महीने का टाइम लगेगा. अगर आप करोगे तो आपका डेटा चला जाएगा, वेबसाइट क्रैश कर जाएगी. सो यू गॉट टू रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग. अक्सर लोग एक्सेल शीट जो आपकी पीसी पे होती है उस पर सेव कर लेते हैं, बट कभी कभी आप भूल जाते हो आपने डेटा कहाँ सेव किया है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, या क्रैश कर गया पीसी. सो व्हाट यू वुड डू इन दैट केस, यू कैन यूज गूगल शीट. दैट्स एन ऑनलाइन शीट जिसमें मैं आपके अटेंडेंस लेता हूँ. एवरीथिंग इज मैनेज्ड ऑन द गूगल सर्वर. ओके, यू गेट 15 GB ऑफ इंटरनेट स्पेस ऑन दैट गूगल सर्वर, सो यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग मोर. So create a Google sheet, name that create a sheet particularly and name that account details, and in that you're gonna put every single information like कब आपने डोमेन बाय किया, किस प्लेटफॉर्म से बाय किया, कितने में बाय किया, उसका URL क्या है, every single thing that must be there, your password ID, everything. Okay, so ये सारी details you're gonna put that in your Google sheet. That's mandatory. Okay, so once you are done, you are basically ready to start off your journey. Okay, so here are the important things to remember while you're getting that. Okay, so make sure you guys do that. Next come the hosting section. होस्टिंग. ओके, बिफोर गोइंग टू होस्टिंग एक चीज मैं बता दूं आपको कि डोमेन में बिफोर गोइंग टू होस्टिंग आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस थिंग आल्सो कि डोमेन में आपके पास क्या होता है जब आप बाय करते हो ना डोमेन. तो लेट मी जस्ट गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आ गए अंकुर? गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग निकलता सर तो उसमें लेट हो गुड मॉर्निंग अंकुर. गुड मॉर्निंग. ओके, वेलकम. हाँ, मैं समझ गया था. मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दिया. संदीप जी को भी आज जाना था, फिर मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दिया. मैंने कहा आज का सेशन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो. अभी मुझे पता नहीं था कि इंपॉर्टेंट होगा, बट अभी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की हैं तो इंपॉर्टेंट है. रिकॉर्डिंग मैंने आपके लिए बना ली, आगे के लिए आप यहाँ से देख सकते तो ज्यादा मिस तो नहीं कर दिया ना? नहीं, अभी सिर्फ एक टॉपिक है डोमेन का. Alright, so डोमेन में कुछ चीजें और आपको डिसाइड करनी है. वंस यू बाय योर डोमेन, when you sign up, तो आपके ना अकाउंट बनता है. एंड so once you sign up, you have few things over there. Okay, so you have your domain with you. Domain means domain name with you, and inside that domain name there will be one thing that's called as DNS. That's named as domain name server. Guys, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरी लाइफ आपको काम आएगा. डोमेन नेम सर्वर. सर्वर क्या है? इंटरनेट का डेटा, जहां पर जिस सर्वर पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, दैट्स कॉल्ड सर्वर. डोमेन नेम
कि आपका नेम किस सर्वर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट्स व्हाट कॉल्ड डीएनएस। तो जब आप डोमेन नेम अपना बाय करते हो, वंस यू बाय योर डोमेन नेम, सो यू गोटा चेंज दिस स्टफ, राइट? आई टोल्ड यू ना कि आपको क्या करना होता है, इंटरलिंक करनी पड़ती है। सो यू गोटा फाइंड दिस डीएनएस ऑप्शन इन योर डोमेन नेम, ओके ओके, आई विल गो इट ऑन लेटर ऑन बेसिस। अभी आपको बस इतना समझना है कि डोमेन नेम में एक फाइल होती है डीएनएस करके, जिस पर कोई और सर्वर पड़ा होता है, किसी और सर्वर पे हमारा डोमेन पड़ा होता है, ठीक है? कैसे बताइए? क्योंकि हमारा डोमेन जब हम सर्च करते हैं GoDaddy पे, तो GoDaddy हमें बताता है ना कि दिस नेम इज अवेलेबल। तो हाउ ही नोज दैट? ही नोज दैट बिकॉज उसका वो नाम उस सर्वर पे फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है? दैट्स व्हाई ही नोज दैट। तो आपको अपने डोमेन नेम में आना है और इस सर्वर को चेंज करना पड़ेगा। अभी ये सर्वर कौन सा है? अभी ये सर्वर ये GoDaddy का होगा। GoDaddy के सर्वर पे आपका नाम पड़ा हुआ है। सो व्हाट यू गोना डू, आप इसको GoDaddy के सर्वर से हटा दोगे और इसको दूसरे सर्वर पर लॉन्च करोगे, जो होगा आपके होस्टिंग का सर्वर। और इंटरलिंकिंग कैसे होती है मैं आपको थर्ड सेक्शन में समझाऊंगा। अभी सिर्फ छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चलना आपको, सो दैट आपको ये चीजें बाद में हॉन्ट नहीं करें। ऑल्दो मैं ये वीडियो आपको के साथ शेयर कर दूंगा, बट फिर भी आप उसको ध्यान रखना। नाउ हियर इट इज कि आपने अपना डोमेन नेम समझ लिया है। नाउ लेट्स जस्ट गो विद आवर hosting. Like, what is hosting? How does that work? That's a wonderful topic, hosting. भैया घर पे हमारे होस्ट आते हैं, ठीक है? होस्ट नहीं है, होस्टिंग है। तो यहाँ पर होस्टिंग क्या काम करती है? इंटरनेट में आपने स्पेस लिया, दिस स्पेस विल बी फॉर आपकी जो वेबसाइट रहेगी, उसमें कई सारी चीजें आप डालोगे। मे बी देयर वुड हैव सम इमेजेस, सम टेक्स्ट, देयर विल बी सम वीडियोस टू प्ले, राइट? एवरीथिंग, बहुत सारे पेजेस होंगे आपके दैट यू विल बी क्रिएटिंग अप हियर। ये सारा डेटा इंटरनेट पर कैसे पढ़ रहा है, वो जहां पर सेव होता है ना, दैट्स कॉल्ड होस्टिंग, दैट्स योर होस्टिंग। इंटरनेट स्पेस इज योर होस्टिंग। सो क्या क्राइटेरियाज होते हैं? देखो, होस्टिंग आपकी कई तरीके की होती है। जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे, सर्वर है मेरा, सर्वर पड़ा है, सर्वर पे डाल दो, ठीक है? देयर इज लाइक शेयर्ड होस्टिंग। आपने AWS सुना होगा, Amazon वेब सर्वर, दैट्स सेम थिंग, सर्वर, ओके? या यू माइट हैव हर्ड Linux होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग। ये सब क्या है? ये सब प्रोडक्ट्स है। जैसे लेज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, दीज आर द प्रोडक्ट्स, बट क्या है? अल्टीमेटली चिप्स है अंदर, ठीक है? सो अल्टीमेटली चिप्स है, बट टेस्ट अलग अलग है। जैसे दिस इज कॉस्टली, सर्वर इज लाइक बहुत सारा डेटाबेस है आपके पास, कई सारी वेबसाइट्स आपको इसमें लॉन्च करनी है, बहुत बड़ा ट्रैफिक आ रहा है, लाइक फ्लिपकार्ट एंड लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दे हैव देयर सर्वर इंस्टॉल्ड, राइट? जहां पर इनका डेटा मैनेज हो रहा, बहुत सारा इनके पास डेटा है। We don't require that. We have a little bit of traffic will coming up, and we want a portfolio site. And even आपके पास अगर 1 लाख का भी ट्रैफिक आ रहा है, you can manage it with shared hosting. Okay, why? Shared hosting is like you can understand the name. Shared मतलब already कई सारे लोग share कर रहे हैं इसको. So it is cost specific. Okay, it's very less in cost. Okay, so here we go. The shared space hosting we are gonna use, and it is very less in the cost. Okay, how much it costs you? Okay, there are two kind of hosting providers. One which provides you extremely good services like HostGator, Bluehost. There's so many others. Okay, बहुत सारे, GoDaddy even is there. There's so many other like which helps you to you know, put content where, like okay, there's some shared hosting problem. तो वहाँ आपको क्या पड़ेगा? Costing जो पड़ेगी, that will cost you around 3,500 rupees per year. Okay, 3,500 rupees per year, where you'll get space of almost 10 GB, which is very much. Okay, 10 GB is a huge space. And bandwidth, like आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होगी, customer support and everything. There's so many good options that you get. Alright, and plus you get the SSL. So what is SSL? यहाँ पर आ गया तो SSL भी समझ लो आप। SSL क्या होता है? That's called, इसको भी लिख लेना guys। SSL क्या होता है? Secure Socket Layer।
डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यूज में या फिर कल को आपको जरूरत पड़ेगी इसमें, बिकॉज सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी यूआरएल में ऊपर देख लो, आपको ये लॉक बन के आ रहा है, मोस्टली जगह आपको लॉक दिखाई देगा, ठीक है। जस्ट गो देयर, you'll get this lock, you'll get this lock. What is that? This is secure socket layer. There's a layer on internet जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट पे मालवेयर अटैक ना हो, हैकिंग अटैक्स ना हो, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? जब आपका यूआरएल स्टार्ट होता है, यूआरएल कैसे स्टार्ट होता है? HTTP से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। बट इस केस में आपका यूआरएल HTTP से नहीं स्टार्ट होता, इस केस में आपका यूआरएल स्टार्ट होता है HTTPS, फिर आपका यूआरएल आगे जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आपका जो यूआरएल होगा वो HTTPS से होगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट शो यू दैट, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट, सी HTTPS, you see that? That's called security is already in your site. It's very important. If your site is not secure, maybe in future you can experience some malware attacks. Okay. So we are gonna install this, and usually we get that from our hosting service provider. Okay, we get that. Either if you are not getting that, you may have to install it. You need to buy SSL, and that will cost you around another 600 to 1500 rupees for an year basis. That's a cost, extra cost that will occur to you. But this is a premium one. While we are practicing it, we need to understand how does that work and everything happens. So I'm gonna suggest you an alternate way where I'll be taking up a guarantee about things like, yes, you can just work upon something in your learning moment. Like what you can do, you can buy non-premium hosting service. Like you can see that here, there is some service providers like hosting.co.in, Globehost, and there's some service provider where you'll buy just hosting in around I'm gonna tell you, एक का मैं आपको बताता हूँ फायदा किसमें होगा आपको। अगर मैं आपको hosting.co.in की बताऊंगा तो that will cost you 900 rupees for one domain. Yes, Globehost, I'll share that, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, it will cost you around 870 rupees, and with GST and everything I think that will cost you 900 approx, 950 900 approx for yearly basis, ठीक है। So यहाँ पर 3500, यहाँ पर 900, that's a huge difference, but difference is also there in so many things. Like here you get 10 GB of data, here you get 3 GB of data to store, space, not data, space to store. But here you get only one domain to store, here you get 3 domain, means एक होस्टिंग के अंदर आप 3 वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसने आपको 3 डोमेन्स को होस्ट करने की ऑप्शन दी कि भैया मेरी वेब होस्टिंग के अंदर आप 3 अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, उनका डेटा रख सकते हो, ठीक है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। तो मान लो अगर आपने 900 पर ईयर लिया, कल को आपने कोई क्लाइंट ले लिया, तो आप उस क्लाइंट के बिहाफ पे आप उसको अपना मैनेज कर सकते हो कि हाँ यार अभी प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट को अपनी होस्टिंग पर डाल देते हैं और उनकी साइट बना देते हैं, उनका काम कर लेते हैं, तो आपका पैसा वहां से बच जाएगा। वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन दिस थिंग, तो हम इसी वाली होस्टिंग पर काम kरेंगे जिसपे अल्टीमेटली आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट होस्टिंग आल्सो। नाउ होस्टिंग का सेकंड पैरामीटर, इस पे भी 2 चीजें ध्यान देनी है आपको। पहली चीज यूनिक जीमेल आईडी जो हमने जो बनाई थी, उसी जीमेल आईडी से हमको उसमें साइन अप करना है। We're gonna buy that hosting and we'll use our domain name. जब आप hosting buy करते हो तो they ask you कि you wanna buy a domain also or you have your own domain. So we are gonna choose we have our domain. And अपने domain जब आप डालोगे तो उस domain name के लिए आपकी hosting registered हो जाएगी, ठीक है। It is required. आपको उस डोमेन के लिए अपनी होस्टिंग को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहला स्टेप होता है अपना डोमेन नेम आप डालोगे यहाँ पर। तो पहला स्टेप क्या था, होस्टिंग डोमेन बाय कर लिया, फिर उस डोमेन को आपने होस्टिंग पर डाला, फिर आपको आगे के ऑप्शंस खुलेंगे कि हाँ इस डोमेन के लिए मुझे ये होस्टिंग बुक करनी है, तो उस डोमेन के लिए आपकी होस्टिंग बुक हो जाएगी। बाय करने के बाद क्या होगा, आपके ईमेल पर कुछ डिटेल्स आएंगे। पहला तो होगा आपका दैट्स कॉल्ड कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, कि आपने बाय कर लिया। इनवॉइस आ जाएगी आपकी, ओके, एंड बाय करने के बाद आपका लॉगिन जो डिटेल्स है वो आपके पास आ जाएगा कि लॉगिन भी अपने पैनल पे कैसे लॉगिन करना है। फिर आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड cPanel। व्हाट इज cPanel? इट्स कॉल्ड कंट्रोल पैनल। इस पैनल के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, आपकी सारी डिटेल्स होती है कि वेबसाइट पर
क्या हो रहा है, प्रोग्राम्स क्या लिखे हैं, कोड क्या लिखे हैं, कुछ आपको मैनुअली अपलोड करना है, वो आपको अपने खुद के नाम का ईमेल बनाना है, लाइक info@prashantchauhan.com, sales@prashantchauhan.com, आपको मल्टीपल सब डोमेन्स बनाने हैं, लाइक lead.prashantchauhan.com, that's what you can create, and कई सारे टूल्स भी होते हैं, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है यहाँ पर, यू आर गोइंग टू लॉन्च अ वेबसाइट थ्रू वर्डप्रेस। तो कंट्रोल पैनल आपको वर्डप्रेस को लॉन्च करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। देयर इज अ प्री इंस्टॉल्ड वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? दैट्स अ सीएमएस, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आगे वाले स्लाइड में। सो सी पैनल में आपको अपना वर्डप्रेस लॉन्च करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप जूम भी बना सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बना सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से वर्डप्रेस लॉन्च करने का चांस मिलेगा, ठीक है। कल को अपनी अगर ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, खुद की ईमेल आईडी। तो दैट्स व्हाट यू गोना डू हियर। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलता है एक और सेक्शन, एक और चीज जिसको हम कहते हैं नेम सर्वर। नेम सर्वर यूआरएल। सो व्हाट यू वुड गेट, अब यहाँ पे दो चीजें मिलती है आपको, आईपीओ नेम सर्वर, ठीक है। तो एक ही चीज होती है आईपीओ नेम सर्वर। यू गोना यूज दीज नेम सर्वर्स फॉर व्हाट? यू गोना यूज दीज नेम सर्वर्स फॉर डोमेन, ओके। यहाँ पर आपको मेल पर सीपीएल डिटेल्स आएगी, साथ ही साथ नीचे उसी मेल पर नेम सर्वर्स की डिटेल्स आएगी। नेम सर्वर की डिटेल्स को आपको क्या करना है? कॉपी करना है। यहाँ पे दो यूआरएल होंगे आपके पास, यूआरएल 1 एंड यूआरएल 2। इन दोनों यूआरएल्स को आपको कॉपी करना है, ठीक है। एंड कॉपी करके इनको कहां पे रखना है आपको? इसको भेजना है आपको डोमेन में, ठीक। डोमेन का आपका स्पेस होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है? इन यूआरएल्स को पेस्ट कर देना है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। और अपडेट कर देना अपना नेम सर्वर, ठीक है। कहाँ पे करोगे? नेम सर्वर डिटेल्स में। आपको नेम सर्वर डिटेल्स फाइंड आउट करनी होगी, और वहां पर जाकर के आपको ये दोनों नेम सर्वर्स पुराने नेम सर्वर्स से एक्सचेंज कर देने हैं, अपडेट कर देना है विद इन 3 आवर्स। आपकी साइट इंटरलिंक हो जाएगी, एंड उसके बाद आकर के आपको वर्डप्रेस को लॉन्च कर देना है, ठीक है। इसी डोमेन पर जब आप लिंक कर दोगे ना, तो लिंक करने के बाद ही वर्डप्रेस लॉन्च कर पाओगे आप। तो पहले इंटरलिंकिंग करेंगे, फिर आपकी वर्डप्रेस यहाँ पर लॉन्च होगी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि ठीक है, दैट्स इट। अब जब आप करोगे ना धीरे धीरे, तब आपको समझ में आएगा। अभी बस थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हुए चलो, ताकि कल को आप भूलो नहीं ये सब। Once we are done with this, we'll be moving around with our next step, that is called WordPress. What is WordPress? It's an open source platform जो कि डेवलप किया गया है हम जैसे मार्केटर्स के लिए, जो फटाफट वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ज्यादा कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं। फॉर दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट्स कॉल्ड CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका कंटेंट मैनेज करता है। दैट्स कॉल्ड वर्डप्रेस, ओके। सो इट्स ओपन सोर्स, यानी कि इसका कोई एक कंपनी नहीं है जो इसको मैनेज करती हो। लाइक आप एक बहुत अच्छे कोडर हो, आप वर्डप्रेस पे कम्युनिटी पर जाओ और वहां पर आप अपनी कोडिंग को अपलोड कर सकते हो। वर्डप्रेस में आपका वो चेंज आ जाएगा अगर दैट इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। इट्स समथिंग लाइक आप ओपन सोर्स क्या होता है, जैसे कि आप समझो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं आपकी, इट्स सेम थिंग कि उसमें किसी एक का हक नहीं होता, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो जब भी आप कुछ बाय करते हो, ठीक है, तो वो उन सारे सर्वर से होकर चलता है, डिकोड करके आप यू जस्ट पुट एवरीथिंग ओवर देयर, ओके। तो इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट लाइक कि किसी एक कंपनी को इसका हक है। हालांकि स्टार्ट तो किया गया था एक कंपनी के द्वारा, बट धीरे धीरे ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बन गया। तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट्स आती रहती है वर्डप्रेस में। इट गेट्स बेटर एवरी डे और इट्स वेरी सिक्योर। पीपल से दैट नो इट्स नॉट सिक्योर। यस, अगर किसी को हैक करना है तो वो हैक कर ही लेगा, चाहे वो आपकी कोडिंग की साइट हो, चाहे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की साइट हो जाती है। बट वर्डप्रेस सिक्योर है। हम SSL भी लगाते हैं, हम कई सारे प्लगइन्स भी यूज करते हैं, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। तो वी विल इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड क्या करना होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, कैसे इंस्टॉल होता है एंड एवरीथिंग दैट आई विल एक्सप्लेन यू। इंस्टॉल करने के बाद व्हाट यू विल गोना डू, यू गोना पुट अ थीम हियर। थीम क्या है? इट्स अ टेम्पलेट। For example,
प्रशांत चौहान को अगर आप पाओगे तो you see that what is there, I'm editing this thing, this is a theme, a template into which I'm editing things here. Okay, so that's what a theme is all about. You know, you change content in that, you know, publish things up, right? theme के अंदर आप चीजें edit करते हो. Okay, and you do the interior. There's a template, like template for different works. Like if you want to create a mechanic website, you can do it. If you want to create a construction website, home construction, that you choose the template and that will be home construction. You want to be educator, the educator की theme choose कर लो, अब वो उसकी website आ जाएगी आपके पास. You want to be a digital agency, the agency की theme choose कर लो, you will have an agency, right? Okay, so there are so many themes in the market and so many templates in the market, right? एक थीम के अंदर टेम्पलेट्स होती है, you wanna choose that. तो बहुत सारी थीम्स होती हैं, कुछ होती हैं फ्री और कुछ होती हैं पेड. ऑल्दो फ्री में भी बहुत अच्छी है, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपका WP Ocean, एस्ट्रा, बहुत सारी हैं जिसमें हेस्ट्रिया, कितनों का नाम लिखूंगा, बहुत सारी है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी थीम है. इनको आप जब बाय करोगे ना तो इसमें आपको कई सारी फ्लेक्सिबिलिटीज मिलेंगी, जैसे कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन. रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है कि आपने वेबसाइट तो बनाई पीसी पर, बट मोबाइल पे जब ओपन कर रहे हो तो फट न जाए. पहले देखते थे आपकी पहले वेबसाइट से होती थी, बहुत छोटी सी खुल करके आती थी, डेस्कटॉप वर्जन में मोबाइल में आता था, लेकिन अब नहीं आता होगा क्योंकि अब वो रेस्पॉन्सिव है, यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग अपना ऑटोमेटिक शेप चेंज कर लेती है. तो वो फ्लूइडिक रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहाँ से आती है? दैट्स कॉल्ड वर्डप्रेस के थ्रू आपको रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है. then comes up here, see WP Ocean हो गया. पेड में आपके पास बहुत सारी थीम्स हैं एंड उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है आपका जिसको कहते हैं थीम फॉरेस्ट. सो वहां से आप अपनी थीम्स बाय कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम गोना शो यू दिस वन. Can buy that from Theme Forest. This is Theme Forest और यहाँ पर आपको हर चीज के लिए अब just go to WordPress and think about like for what you want that. You want e-commerce, education, anything. So just click over there and you get everything. कौन सी टॉप पर चल रही है, किस पे कितने रिव्यूज है, कितने बायर्स हैं, कैसा पोर्टफोलियो है. लाइक आपको मान लो फ्लैट से अच्छी लग रही थी, जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड इट्स अ $59 थीम एंड यू कैन जस्ट सी लाइव प्रीव्यू अबाउट दैट कि व्हाट आर द थिंग्स दैट विल गेट, व्हाट आर द टेम्पलेट्स विल गेट. तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं. ओके, तो दिस इज अबाउट थीम, इट्स अ एंटायर प्लेस फॉर थीम्स. यू कैन बाय सो मेनी थिंग्स. Like suppose for my case, I'm also using a paid theme because you can see that it has more options. If I show you this one, it opens up very smoothly. It has so many good options available here. So this theme alone cost me around 6,700 rupees. See how this is working. Every time you just open up, there's a different kind of stuff comes up here and it's moving. And even the cursor is not like a pinpointed cursor. If you just move around, see, it goes quite a bit differently, right? So you see these things are here. तो ये सब कैसे आया? ये सारी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, we just buy this one, okay? So we just buy paid theme for that. Okay, तो यहाँ पर आप ये सारी थीम्स देख सकते हो. बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स मिलती है. तो जब एजेंसीज के लिए आप काम करते हो या क्लाइंट्स के लिए काम करते हो तो आप एक पेड थीम बाय कर लेते हो. उससे रिलेटेड बहुत सारी आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जो अपने क्लाइंट के लिए आप डिफरेंट बिजनेसेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो. Maybe for salon, maybe for photography, maybe for dance classes, anything. You get so many themes here. अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप उसको सीख जाओगे. Okay, so you get so many paid theme options. These two things. अब इसमें क्या होता है, अगला आप चूज करते हो टेम्पलेट. पहले थीम चूज कर लिया आपने कि मान लो हम लोग किस पे काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे एस्ट्रा पे. इट्स अ गुड थीम फॉर फ्री, इट्स अ रियली गुड थीम. एस्ट्रा पे काम करेंगे एंड देन विल चूज द थीम टेम्पलेट दैट विल बी एजेंसी, जो कि हम चूज करेंगे क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम कर रहे हैं. तो विल बी चूजिंग अप दिस वन एजेंसी एंड देन वी विल एडिट इट. Then we will edit. What we will edit, just like I'm doing this editing part, right? कहाँ पर क्या चीज डालनी है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर ये लिखना है. तो this is what editing. So editing पर आ जाते हैं. Edit कैसे करते हैं?
हर एक थीम को एडिट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्लगइन्स। जिनको हम कहते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स का काम क्या होता है, जो आपने थीम ली है ना, जो आपने टेम्पलेट चूज किए, उसके अंदर एडिटिंग करनी होगी आपको, लाइक कंटेंट चेंज करना होगा, उसके अंदर आपको ग्राफिक्स डालने होंगे, अपनी इमेज डालनी होगी, वीडियो लिंक्स डालने होंगे, कंटेंट चार्ट डालना होगा। दैट हैपेंस थ्रू एडिटर, दैट्स कॉल्ड पेज बिल्डर। That's called Page Builder. That's a plugin, and we are going to use Elementor. It's world's best plugin to use. Okay, it's Elementor. Elementor क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट में कोई भी चेंज करने में। सी अभी मेरा ये लॉगिन नहीं है, माफ करना। जैसे मुझको इसमें कुछ भी चेंज करना है, ये देखो एलिमेंटर है मेरा, ठीक है। आई कैन क्लिक ओवर हियर, आई कैन चूज एनीथिंग, लाइक इफ आई वांट टू ड्रैग एंड ड्रॉप अ हेडिंग हियर, सो आई कैन जस्ट सिंपली डू दैट। सी, I dropped it. This is my heading. How I want to make it, what I want just to put here, I can do anything here, right? So that's how you do it. Okay, आपको कुछ change करना है इसमें, just click over here and make the changes. So how I'm doing that? There's a page builder that's not named as Elementor Page Builder plugin. Okay, so you're gonna use multiple plugins for, जैसे आपको editor edit करनी थी तो Elementor से करोगे आप। आपको ईमेल ऑटोमेशन करना है तो आप मेलचिम्प का प्लगइन डाउनलोड कर लोगे। आपको एसईओ देखना, एनालिटिक्स देखनी है तो आप गूगल एनालिटिक्स का प्लगइन डाउनलोड कर सर ये लोगे। मेल क्या क्या लिखा था आपने? मेलचिम्प। राइटिंग दिस टाइम बंदरों जैसी रहेगी। गूगल एनालिटिक्स का आप प्लगइन यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। गूगल साइट किट कर लोगे। तो ये क्या है, ये सारे प्लगइन्स हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। अगर आपको सोशल बटन, जैसे आप देखते हो कई बार ब्लॉग्स में सोशल शेयर का बटन होता है, आप क्लिक करते हो ऑटोमेटिक फेसबुक में शेयर हो जाता है, तो वो क्या है, दैट्स आल्सो अ प्लगइन जो आप यूज करते हो। तो व्हाट इज प्लगइन? आप एक और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर प्लग कर रहे हो। ऑलराइट, so that is called plugins. So we are going to install few plugins which will be very important for us to just add on some functionalities in our WordPress website. Right? I hope that is very clear. Okay, just make it clear, not all clear. Okay, so just keep things in your mind and start creating some short notes, because that will be help out. So we are here, and now the next thing, प्लगइन्स हो गए, एडिट हो गया, आप समझ गए ना। पहले थीम आप चूज करोगे, उसमें से आप टेम्पलेट चूज करोगे, एंड देन टेम्पलेट चूज करने के बाद एडिट के ऑप्शन पे जाओगे, कुछ प्लगइन्स ऐड करोगे ताकि आप अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर सको। वंस यू आर डन विद द चेंजेस, यू आर गुड टू गो। नाउ वी विल प्रोसेस विद अनदर स्टफ कि लाइक हाँ, हमने वेबसाइट बना ली, अपने कुछ पेजेस होते हैं वो हम लोगों ने डिसाइड कर ली, एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। So we are going to create 5 pages initially. Number 1, home, जो हमारा मेन पेज होगा। Number 2, services, contact, about, and blog। ये कुछ पेजेस हैं जिन पर हम काम करेंगे, इनको क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमें कई सारे ब्लॉग्स बनाने होंगे। सो हाउ वुड वी डू दैट? बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन होता है, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर जाओ, वहां पर पोस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। पोस्ट का ऑप्शन होता है, तो क्रिएट पोस्ट, वो आपकी साइट पर ब्लॉग के सेक्शन पर दिखाई देंगे। अब ये सब कस्टमाइजेशन का सेक्शन होता है, जिस पर हम लोग एडिटिंग करेंगे, जो मैं आपको आगे चलते सिखाऊंगा। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देना है कि ये क्या क्या चीजें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार वापस से रिवाइंड करते हैं कि हम लोगों के पास 3 चीजें होती हैं जिस पर हमें काम करना होता है इनिशियली। ऑलराइट, तो हियर वी आर। अभी हम लोग कहां तक पहुंच गए? हमने ये 5 सेक्शंस की बात कर ली, ठीक है। यानी कि सबसे पहले डोमेन नेम, होस्टिंग, इंटरलिंकिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, टेम्पलेट चूजिंग एंड एडिटिंग, ठीक। वी हैव डन विद दीस थिंग्स। यही हमारा प्रोसेस है। नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट ही यही है। ये सारा मैं आपको कल कराऊंगा वन बाय वन। आज का टास्क क्या है आपका? टुडेज टास्क इज दैट यू गोना चूज, फाइनलाइज योर नेम, you're gonna create an email ID. Today's task. On Gmail, right? On Gmail, that's absolutely right. On Gmail, that must have few things which I have told you.
कि it should not have any numericals, any digits, right? You're not gonna use that. It should be professional, like connect. आप मेरी आईडी कॉपी कर सकते हो, connect dot प्रशांत चौहान या connect with प्रशांत चौहान, आप connect with शुभम, ठीक है, या work with शुभ, तो आप कुछ भी अपना ये ले सकते हैं, थोड़ी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। कोशिश करो कि आपको आपके नाम की मिल जाए, जैसे हम लोग की एजेंसी की क्या है, digitalnawab@gmail.com एजेंसी, राइट? तो कोशिश करो आपको आपके नाम की मिल जाए। If you are not getting your name, email ID, then try going with some other words addition, okay? But do not make it funnier, because जब आप कंपनी में अप्रोच करते हो तो आपके फिर कुछ ऐसे होते हैं ना, अजीब से लगते हैं नेम, ओके? फन बॉय, हेल्प बॉय, that's not we're going to use, okay? We are going to make it a very matured website.